The next part of our unit, which is ultrasound. चालू है अब इस बार करा है. Okay, so part of this unit there were two parts mainly. First was acoustics, which we studied previously, and now we will be talking about the second part, which is ultrasonics, in which we will be dealing with a very specific part of this big thing. Acoustics was talking about every kind of sound, whether it be infrasound, whether it be sonic, whether it be ultrasound. In ultrasonics, we will be talking about a very niche and specific criteria of that acoustics. And हम स्पेसिफिकली अल्ट्रासाउंड की क्यों बात करेंगे, उसके पीछे रीजंस हैं. तुम लोगों ने सुना ही होगा कि कहीं पे भी एप्लीकेशन की जहाँ बात आती है, व्हाट वी डू इज इन एप्लीकेशंस. तुम लोगों ने कभी भी रेगुलर साउंड का नाम नहीं सुना होगा एप्लीकेशंस के टर्म्स में, कि कहीं पे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर वांट्स टू फाइंड आउट आपकी बॉडी के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में ट्यूमर या फिर किडनी में स्टोन्स है कि नहीं है. तो व्हाट दे यूज इज, क्या यूज करता है डॉक्टर स्टोन्स पता करने के लिए? अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड ना, दे हैव दैट अल्ट्रासाउंड मशीन टू फाइंड आउट दोस किडनी स्टोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो हमने कभी भी रेगुलर या फिर इंफ्रासाउंड का नाम नहीं सुना इन चीजों को लेकर. हमने हमेशा अल्ट्रासाउंड का नाम सुना है. तो देयर आर स्पेसिफिक रीजंस कि अल्ट्रासाउंड भी क्यों यूज होती है. ठीक है, कोई गैस कर सकता है क्या रीजन है कि व्हाई डू डॉक्टर स्पेसिफिकली यूज अल्ट्रासाउंड? वो एक नॉर्मल स्पीकर लगा के क्यों नहीं पता कर लेता कि अंदर पत्थर है कि नहीं है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हियरिंग से ज़्यादा होती है एंड थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होती है. ज़्यादा एक्यूरेट. ओके, yes, that is also one of the things. So both of them are partially right. They are hovering around the right idea only. So effectively, because of the high frequency of ultrasound, it is pretty focused. It doesn't spread out much. And anything which is focused, just like lasers, is generally used to find out distance or position of things. हम लोग जब भी like for example हम बात करते हैं नए सैमसंग या फिर आईफोन में कैमरा जो आ रहा है, they give terms like they have laser autofocus. They have separate sensor for that, which is having a laser diode which is detecting the distance of object from you, from specifically the camera sensor. So why are they using these terms like lasers and all those things? Because these are focused things. So just like in light, when laser is focused, similarly whenever you are talking about sound, ultrasound is relatively more focused when compared to regular sound or infrasound or sonic sound. ठीक है, that is one of the reasons. Another reason is it is also used to find out fractures or cracks in materials. अब कोई भी चीज फोकस्ड फॉर्म में बिहेव करेगी, बिहेव समथिंग लाइक ए टॉर्च. एक साउंड की टॉर्च है, तो जब उस टॉर्च से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं स्पेसिफिक पोजीशंस, तो हम एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा सकते हैं. अगर कोई चीज स्प्रेड आउट कर रही होगी तो उसमें से तुम्हें फीडबैक मिलेगा. तो मान लो फीडबैक के दो ऑप्शन है. एक फीडबैक का ऑप्शन है फ्रैक्चर है, दूसरा ऑप्शन है फ्रैक्चर नहीं है. और तुम रेगुलर साउंड अगर यूज कर रहे हो, उसका स्प्रेड इतना है, तो आंसर आएगा फ्रैक्चर है. उस आंसर का फायदा क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता इस सब में फ्रैक्चर कहाँ है. करेक्ट. हेंस अल्ट्रासाउंड का फायदा क्या है, वो जाती है बहुत नैरो पार्ट में, जिधर तुमने फेस किया उस सेंसर को, वो उसके स्ट्रेट अहेड जाएगा और स्ट्रेट ही वापस आएगा. तो जब वो बोले कि फ्रैक्चर है, यू नो कि फ्रैक्चर उतने एरिया में है. ठीक है. So that is, these are one of some of the things why we will be studying ultrasound and ultrasonics. तो इसमें we will be talking about first classification हम कर चुके हैं, although generation of ultrasonic waves in which we will be talking about magnetostriction oscillator and piezoelectric oscillator. तो आज तुम में से एक बैच ने लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया था. The experiment was named what? What was the name of the experiment? Ultrasonic interferometer. That was the name of the device, and we were trying to find out velocity of ultrasounds through some particular liquid. In our case, it was water. ठीक है. तो ये जो piezoelectric oscillator की जो बात हो रही है, यहाँ हमने यहाँ पे एक नाम लिया था quartz. So quartz is a crystal which is a piezoelectric crystal. So we'll be talking about these things, that how quartz behaves in response to an electrical input, or how it behaves in response to some mechanical input on it. It performs those things in
kilohertz. This you guys already know. So this is just one-sided boundary. Have a look at it. It never tells you up to where it is. It just tells you that any value higher than 20 kilohertz, all of them will be called ultrasound only. Clear है ना? कोई तुमको बोले कि 40 मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज, और तो उतनी नहीं जा सकती साउंड में, बट अगर कोई बोले तो तुम उन सबको ही तुम क्या बोलोगे? Those are all ultrasound only. So anything about 20 kilohertz, those are all ultrasound. ठीक है? Animals में यूज होती है? कोई एनिमल यूज करता है अल्ट्रासाउंड? कुत्ते, अगर किसी ने बैट्स वेरी कॉमन एग्जांपल, डिस्कवरी चैनल अगर देखा होगा तो बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड फॉर इकोलोकेशन. तो उन्होंने भी स्पेसिफिकली देखो अल्ट्रासाउंड ही यूज करी है. जो रेगुलर एनिमल्स हैं दे डोंट शाउट आउट एंड लिसन, नहीं करेंगे ना वो, बिकॉज रीजन इज सेम. जैसा ही मैंने बताया अल्ट्रासाउंड एंड फोकस. सो बैट्स क्योंकि वो रात को शिकार करते हैं, रात को यहाँ से वहां ट्रेवल करते हैं, तो दे यूज अल्ट्रासाउंड एज ए फोकस बीम टू फाइंड आउट द whereabouts of nearby objects as well as the prey that they want, all of those things. ठीक है? So plus another thing which some of the students were confused about, remember all of the sound waves are longitudinal waves. Transverse waves are not sound waves. ठीक है? Just make this thing very clear. So ultrasound, infrasound, regular sound, all of them are longitudinal waves only. Longitudinal means compression and rarefaction. There is no sine wave in longitudinal waves. Whenever you see any kind of sine or cos wave, those are talking about transverse waves. Some of the examples are electromagnetic radiation, light waves in the sea, okay? And like the waves when you pluck the string of a guitar, all of those things. Not the sound which is generated by the guitar. The sound is again longitudinal, but the fashion in which that string oscillates, that is transverse. So you guys should very clearly know what the difference between a transverse and a longitudinal wave is. ठीक है? Let's just move ahead. See, sea animals also use ultrasonic pulses to locate fish. बेलुगा वेव. Sea animals क्यों यूज करते हैं? Reason is as you go deeper in sea, the amount of light decreases. So नीचे आते आते क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में it's the same thing as bats do. They do all of their business during night time when the sun is not there. Similarly, the fishes which are generally living pretty low below water, they have very less amount of solar radiation. So in order to find out objects around them or in order to catch a prey, they use again ultrasound as something which they use for echolocation again. Even when fishes talk to each other, like whales, they are able to communicate with each other for somewhere around 50 to 60 kilometers also. So they do all of those things through water. So first of all, because the medium is water, hence those waves are traveling very fast. Anyone can tell me what was the velocity of ultrasound that we found out today in water? कितने निकली थी? 1480 किलोमीटर पर सेकेंड. मीटर. किलोमीटर्स पर सेकेंड. 1480. जीरोस का फर्क आया होगा. 1520 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट? ठीक है? So some multiplication of 1000 का कुछ फर्क आया. ठीक है? नहीं, सही था. क्रॉस चेक कर लेना. So it came out to be somewhere around 1500 approximately meter per second. Some have got some 1480, some have got some 1520, something like that. ठीक है? So in air it is somewhere around 220 or 240, right? Depending on temperature and humidity conditions of air. But in water it is much higher. So that is why, because the speed is much higher, that also means that sound is able to travel to longer distances. So that is what happens when all of these whales and all these fishes, when they are trying to communicate to each other, they are able to communicate to longer distances because of this property. Because water is denser than air, sound travels faster and longer distance in it. Okay? It is the same thing when I generate a sound here. In this solid, it will be
is magnetostriction and another way is piezoelectric effect. Have a look at these two values. These values are very important because they tell you about the shortcomings of both of these methods. The first method, which is magnetostriction, it talks about it can generate ultrasound from 20 kilohertz to 100 kilohertz. Pretty short range, 20 to 100 kilohertz. But that is also important. If you want a low frequency ultrasound, then you can't use piezoelectric effect, because generally piezoelectric effect works in megahertz order of ranges. So it is saying 1 megahertz and above. In today's experiment, the crystal that you guys used, what was its frequency? 2 So that is called 2 megahertz. So the quartz crystal that you guys used, that was having a frequency of 2 megahertz. So it generated ultrasound of 2 megahertz. So that is above 1 megahertz. So that is why it is called piezoelectric effect. Okay, so let's first talk about magnetostriction. Can anyone tell me what this word means, just by common sense? इसको पढ़ के क्या दिमाग में आता है? So magnets use कर रहे हैं. मैग्नेट से कुछ ना कुछ रिलेटेड है. फ्रिक्शन, Friction से. something related to might be friction or something जहाँ फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ हो रहा हो. करेक्ट? ये तो वर्ड दिमाग में आता है. यही है. That's the only thing. So now let's just talk about, this is some of part of history of this thing. You guys can read it if you want. It's part of the PPT. It is this thing. This is magnetostriction. ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? There is some material which is magnetic in nature. ठीक है? Generally these are some metals. Any metal is generally magnetic in nature depending on what kind of field you apply to it. And when you apply an external magnetic field on it and you change the magnetic field from one direction to another direction, what happens is the poles of north and south, they try to align themselves according to the external applied field. So this is what is happening in the whole crystal, and this is just a zoomed in diagram to show you how those north and south poles try to realign themselves. So इसमें तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? Basically, effectively, the whatever you might call it, y-axis of this rod is changing, right? It is squeezing and expanding. Correct? Same thing you can see here, squeezing and expanding depending on how that field is changing. So what's happening is, if there is such a property of some material which can contract and expand one of its dimension in response to some external field, then effectively what it is a material which can convert applied field into a mechanical energy. And what is ultrasound? Ultrasound is nothing but flow of mechanical energy through some material. So if you have some material which can compress and expand at a very high frequency, then that material can generate ultrasound in that frequency. लॉजिकल है ना, सिंपल चीज है. अगर मैं बोलूं कि ये जो रॉड है इसका कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लेट अस से 300 किलोहर्ट्ज और लेट अस से 30-40 kilohertz, then this thing can generate ultrasound at 30-40 kilohertz. कैसे जनरेट करेगा? इसके कांटेक्ट में जो भी चीज होगी, अगर एयर है तो एयर के थ्रू, वाटर है तो वाटर के थ्रू, जो भी चीज के कांटेक्ट में होगी उसके थ्रू जो साउंड ट्रेवल करेगी वो साउंड अल्ट्रासाउंड कहलाएगी. क्यों? क्योंकि इसकी वाइब्रेशन, इसकी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड के ऑर्डर की है. दैट्स ऑल. और कुछ स्पेशल नहीं है. This is nothing but a simple speaker only. Speakers में क्या होता है? You have a diaphragm which moves forward and backward. Correct? वो diaphragm forward और backward move करता है in the order of 20 to 20 kilohertz. इसलिए हमको सुनाई देता है. This is what the speaker is doing right now. अगर यहाँ पे इसकी जो diaphragm की मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज से हायर होती तो ये एक अल्ट्रासाउंड जनरेट करता है. So this is nothing but this is what's happening here in magnetostriction. तो इसके लिए हम आगे आते हैं, एक बार इसकी थोड़ी फॉर्मेलिटी देख लेते हैं. So coil is wound around the rod of ferromagnetic material. Ferromagnetic material is just a regular name of anything which can be magnetized, which
gives a response in which gives some kind of mechanical response in response to a magnetic input. So what you can see is there is this coil and there is some field generated. So whenever you put some metallic rod inside that coil and you pass current through that coil, current AC DC दो टाइप का होता है, राइट? तुम अगर AC करंट पास करते हो यानी कि डायरेक्शन बदलती रहती है, ठीक है? तो जिस करंट की डायरेक्शन तुम हाई फ्रीक्वेंसी से अगर बदल सकते हो तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जो बीच में रॉड है वो कंप्रेसर एक्सपेंड होगी, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन यही हो रहा था ना यहाँ पे। तुम जो फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शन देखो तुम बदलते जा रहे हो, ये देखो फील्ड की डायरेक्शन राइट लेफ्ट, जब भी तुम फील्ड की डायरेक्शन बदलते हो वो रॉड कंप्रेसर एक्सपेंड होती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, फील्ड की डायरेक्शन एक बार बदलती है, ये दो बार एक्सपेंड होती है। देखो फील्ड लेफ्ट आया एक्सपेंड हुई, फील्ड राइट जाएगा ना दोबारा एक्सपेंड होगी। यहाँ पे देखो फील्ड लेफ्ट आया तब भी एक्सपेंड हो रही है, राइट जा रहा है तब भी एक्सपेंड हो रही है। सो व्हाट दिस मींस इज तुम जिस फ्रीक्वेंसी का फील्ड लगाओगे उससे डबल फ्रीक्वेंसी तुम्हें जनरेटेड मिलेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये चीज तुम्हें यहाँ पर कर दी जाएगी। तुम फील्ड ये लगाते हो, पॉजिटिव साइकिल वो एक्सपेंड करता है, जीरो नॉर्मल हो जाता है, नेगेटिव साइकिल वो फिर एक्सपेंड करता है, जीरो फिर नॉर्मल हो जाता है। दैट मींस तुम्हारी हर पॉजिटिव साइकिल एज वेल एज नेगेटिव साइकिल के लिए वो जो रॉड है वो एक्सपेंड होगी एक बार। दैट मींस अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी तुम ये दे रहे हो तो आउटपुट में जो मैकेनिकल जो तुम्हें अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्लियर हुआ? ऊपर देखो तो पता चलेगा, नीचे देख के नहीं क्लियर होता, यहाँ देखो, ठीक है? सो जितने भी तुम फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड करोगे उसकी डबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलेगी, जो कि इस लॉजिक से बहुत क्लियर है। दिस इज सिमिलर टू हाउ योर रेक्टिफायर्स वाला आइडिया है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें क्या होता है, वो होता है ना, एक में हम नेगेटिव साइकिल को जस्ट काउंट नहीं करते, हाफ वेव रेक्टिफायर में इतना इतना सिग्नल काउंट करके चलता है। एक में बोलते हैं कि जो अपोजिट साइकिल थी उसको करेक्ट कर लिया है, फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया। सो उसको तुम बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर की तरह मान के चल सकते हो अगर याद रखने में आसानी चाहिए तो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर, द लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस वंस इन ईच हाफ साइकिल, वाइब्रेशन सेटअप इन द रॉड आर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2f, ठीक है? एंड अब हम आगे आते हैं। सो हेंस दिस इज व्हाट द फॉर्मूला बिकम्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड। इस फ्रीक्वेंसी से रॉड वाइब्रेशन जनरेट करती है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, जिसमें m इज नथिंग बट ए मल्टीपल। ये वो वाली चीजें मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्लास में बताया था कि whenever any material generates any sound, it doesn't just generate that sound, it generates sound in multiples of that frequency. तो m equal to अगर तुम 1 पुट करते हो तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है जिस पर वो ऑसिलेट कर रही है, और उसके जितने भी मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं कम एम्पलीट्यूड पे वो वाली फ्रीक्वेंसीज भी जनरेट होंगी, उनका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। सो दीज whenever you change the value of m, you are talking about harmonics, first harmonic, second harmonic, third harmonic बोलते हैं उनको। तुम्हारे काम का अभी नहीं है, जस्ट अगर कोई किसी के दिमाग में अगर डाउट आता है कि m क्या चीज है तो ये वो चीज है, ठीक है? क्लियर है? पक्का? ठीक है? l is the length of the rod, y क्या है इसमें? यंग्स मॉडल, क्योंकि सॉलिड रॉड है तो उसकी जो स्टिफनेस है दैट विल मैटर। अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो उसकी फास्ट वाइब्रेशन होनी मुश्किल होती है, सेंसिबल चीज है ना। अगर मैं इस पर्दे को वेरी हाई वाइब्रेशन देना चाहूं तो बिकॉज इट सॉफ्ट है हाई बहुत फास्ट वाइब्रेट नहीं कर सकता। इस अनलाइक दिस इफ आई हैव ए मेटालिक रॉड आई कैन वाइब्रेट इट एट वेरी फास्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो मेटालिक रॉड वाइब्रेट हो सकती है बिकॉज दैट सॉलिड, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, दैट्स व्हाई rho is nothing but the density of that material, ठीक है? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा। दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर सर्किट। अब ये कहां से आ गया? जो मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में हमने इस रॉड को फील्ड प्रोवाइड किया था एक्सटर्नली, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला कि अल्टरनेटिंग होना चाहिए, करेक्ट? उसको अल्टरनेटिंग कौन बनाएगा? इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे
क्योंकि घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज, राइट। हमें चाहिए मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, यानी कि अगर मोर देन 20 किलोहर्ट्ज अगर जनरेट करनी है तो उसको हम इनपुट कितना देंगे, एटलीस्ट 10 किलोहर्ट्ज। यस और नो? जागो। अगर हमें मोर देन 20 किलोहर्ट्ज जनरेट करनी है तो हमें मिनिमम 10 किलोहर्ट्ज तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 9 से मल्टीप्लाई कर लेता है खुद ही। तो 10 किलोहर्ट्ज का हमें ऐसा सर्किट चाहिए तो 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज को पलट सकता हो, प्लस V माइनस V एट द रेट ऑफ मोर देन 10 किलोहर्ट्ज। वो कौन कर सकता है? वो ऑसिलेटर सर्किट कर सकता है। ऑसिलेटर सर्किट का एक वेरी ब्रीफ डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि एम्पलीफायर जिसके आउटपुट को इनपुट में ही फीडबैक करके लगाया रखा होता है। सो व्हेनेवर यू अप्लाई फीडबैक टू एनी सर्किट, the output is fed into input and it repeats in a loop, and that loop is so fast that it can reach very high frequencies. वो कितनी फास्ट चल सकती है that depends on कि ये दोनों जो सर्किट है इनकी इंटरनली क्या रेट है चलने की स्पीड की, that's all that matters. तो अगर तुम्हें फीडबैक का एक एग्जांपल देना हो तो ये एक फीडबैक है, देखो in any case और कुछ रॉन्ग ना हो, तुम लोग जाग गए, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक। व्हाट वाज हैपनिंग, स्पीकर से जो आउटपुट आ रही थी वो माइक पे जा रही थी, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करके दोबारा स्पीकर में आउटपुट निकाल रहा था, लूप बनती गई क्योंकि स्पीकर से जो आउटपुट आई वो डायरेक्ट माइक में चली गई। दिस सर्किट इज दिस सर्किट जो मैंने अभी तुम्हें बना के दिखाया। अभी वो आवाज क्यों नहीं आ रही? दोनों में डिस्टेंस ही कैंसिल आउट कर पा रहा है इस डिफरेंस को। पर अगर ये नजदीक चले जाते हैं तो a loop forms and if you don't stop that loop the device can be corrupted, ठीक है। so इस चीज को अगर कंट्रोल्ड मैनर में किया जाए you can generate very high frequencies। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ this is a normal frequency, जब मैं इसको लेके गया पिच बहुत हाई थी ना, तो what happened, higher frequency was generated। वही काम ये सर्किट करता है। नॉर्मली अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी उसमें तुम ऐसे फीडबैक का सर्किट लगा दोगे वो हाई फ्रीक्वेंसीज बना पाएगा, हमें हाई ही बनानी है, वी वांट हाई फ्रीक्वेंसी पर अल्ट्रासाउंड ना। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेजेस को पलट सकता है। अब देखते हैं ये लगेगा, ये डायग्राम सा डायग्राम है जो अगर अभी डर निकल जाएगा तो एग्जाम में नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। हाँ, ड्रॉ करने के लिए सर। यस सर प्रिंट करा के ले जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ अभी जाग जाओ, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, मैं भी बताता हूँ, ये सब 3 स्टेप में बन जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। हाँ, और बता रहा हूँ ना, देखो अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। इस डायग्राम को तुम डिवाइड करो सिर्फ 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज दिस रॉड जिससे तुम्हें वाइब्रेट कराना है, दिस इज लाइक मेटालिक रॉड जो एक्सपेंडर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इस रॉड के दोनों एंड्स पे तुमने कॉइल लगा दी जो उसको एक्सपेंडर कॉन्टैक्ट करवाती है, ठीक है। एक पार्ट हो गया, जस्ट दिस पार्ट, और मैं देखो अभी, ठीक है। सेकंड पार्ट, अब इसको एक्सपेंडर कॉन्टैक्ट कराने के लिए जो हमने फीडबैक सर्किट वाली बात करी उसमें एक था एम्पलीफायर, एक था फीडबैक, करेक्ट। ये 2 चीज थी ना, देखो ये यहाँ पे जो ये जो चीज है दिस इज योर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो है। तुमने क्या करना है, तुमने एक सिंपली एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बनाना है जिसकी एक एंड पे तुम लेफ्ट से जोड़ दो, दूसरे एंड पे तुम राइट से जोड़ दो। तुम इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ये काम की चीज है जो कैपेसिटर है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एन एलसी सर्किट जो ऑसिलेट करता है, बट इवन इफ यू मिस दिस थिंग आउट, तो रॉड के अलावा देयर इज जस्ट अ कॉमन बेस रेक्टिफायर and these are just connected together, nothing more, कुछ नया नहीं है। देखो तीसरा पार्ट बैटरी है, 3 पार्ट्स नहीं होगा पूरा। रॉड which is vibrating, ठीक है, एम्पलीफायर कॉमन बेस वाला, एमीटर पे तुमने जोड़ दिया बैटरी से, that's all, इतना ही है। So this is the circuit of a magnetostriction device which generates ultrasound at very high frequency from both of these ends। ये चलेगा at a frequency which is double
ठीक है, आसान हो गया। दोनों साइड इंडक्टर है, रास्ते में बैटरी है, सेंटर में एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर कॉमन बेस का है, ठीक है, कॉमन बेस का, ठीक है। चले आगे। दिस इज योर डायग्राम फॉर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो अगर कोई पूछे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ये डायग्राम है जो बताएगा। ये कुछ नहीं बताता, ठीक है, डब्बे मत बना लेना। आगे बढ़े। ये उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, L1 C1। तो अगर स्टिल इफ समवन वांट्स टू नो इसका मीनिंग क्या है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। दिस इज एन LC सर्किट, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। LC सर्किट को अगर तुम एक इनपुट देके छोड़ देते हो तो दे कीप ऑन रोटेटिंग। कैपेसिटर इंडक्टर को पावर देता है, इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर को पावर देता है, एंड देन अगेन कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना होता है। दे कीप ऑन रोटेटिंग, दैट इज व्हाट इज जनरेटिंग द फ्रीक्वेंसी हियर एक्चुअली। समझ रहे हो? ये जो तुम्हें L और C दिख रहा है, L1 C1, दिस इज द सर्किट जो कि ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर सिर्फ उस चीज को इंक्रीज कर रहा है बाय यूज ऑफ बैटरी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ ऑसिलेशन जनरेट हो रही है, इस बैटरी के थ्रू एम्पलीफाई होकर फीडबैक दिया जाए बार-बार, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? सर एक सेकेंड, जागो थोड़ा, पानी पियो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूंगा अगर तुम लोग होश में नहीं आए आज। पक्का बताओ, यस और नो? ठीक है, पक्का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यही सब बता रखा है इंग्लिश में, दैट्स ऑल और कुछ नहीं। अब इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। पहली बात तो सस्ता है, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो बीइंग एन इंडियन तो ये पूछेंगे कितने का है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव। सेकंड, large output power can be produced, this is important actually। piezoelectric crystal जो होते हैं उनकी जो आउटपुट निकलती है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होती, very small amount of current and voltage is generated, इसमें it can be very large। the reason is तुम कितनी बड़ी रॉड यूज कर सकते हो, उसके ऊपर तुम ऑसिलेटर लगा दो, रॉड एक्सपेंडर कांटेक्ट करेगी, दैट्स व्हाट विल हैपन ना। तो उसमें तुम जितनी बड़ी रॉड लगाओगे उतनी ज्यादा पावर तुम जनरेट कर सकते हो, यू कैन मूव बिग ऑब्जेक्ट्स। piezoelectric crystal are generally ready-made crystal जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत छोटे होते हैं, सेकेंडली बिकॉज ऑफ देयर रेडीमेड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, बिकॉज दे आर नॉट मैन मेड, उनकी फिक्स आउटपुट पावर है, उससे ज्यादा पावर वो जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका दो एडवांटेज ये हो गए। लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज देख लो। पहला तो बताइए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो कांट जनरेट, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स कैन नॉट बी जनरेटेड, दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। इसी की वजह से तुम्हारी घड़ियों में क्वार्ट्ज लिखा होता है, कहीं की घड़ी में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन नहीं लिखा होगा। क्यों? घड़ी को प्रिसाइज वाइब्रेशन चाहिए, तब वो पता लगाएगा ना कि इतनी 1000 वाइब्रेशंस में एक सेकंड कंप्लीट हो गई है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल फ्रीक्वेंसी इट कांट जनरेट। क्लियर है? शॉर्टकमिंग्स आल्सो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आजकल ऑलमोस्ट बहुत जगहों पे यूज होती है, ठीक है। मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आई थिंक एट ए टाइम शायद एप्पल में या फिर पिक्सल में देयर वाज अ फीचर इन विच you squeeze your phone and there was some response from the phone in response to your squeezing the phone. So they had piezoelectric crystals installed on the boundaries of the phone. So when you squeeze your phone, it generated some kind of response. So that was an additional input which you can give your phone other than being the touch screen and other things. So that is one of the recent applications that you might have seen of piezoelectric crystals. वैसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो जनरली these are made of
PZT, इसको याद रखना आसान है because it sounds like piezoelectric only, but this is not piezoelectric, this is lead zirconate titanate. ठीक है? P is lead, Z is zirconate, T is titanate. So most commonly used material for this thing is PZT. Naturally occurring material is quartz. ठीक है? ये 2 याद रख लो काफी है. That is more than enough. अगर एग्जांपल का पूछे तो quartz बहुत कॉमन है. PZT नाम से आ जाएगा. ठीक है? ठीक है. ये सब मैं तुम्हें समझा देता हूँ. तो देखो this is what's happening. तो there is this piezoelectric crystal. अब इसको तुम 2 तरीके से देख सकते हो. First is you are applying some force to compress it or refract it. In response, it is generating some voltage, high or low, based on either it is being compressed or refracted. So let me just zoom in and show it to you if you are able to see it properly. Okay, so strangely when you zoom it, it stops moving. I am hoping you guys are able to see this thing, the knob which is moving. So what happens here is there are 2 parts of it to study it. One is piezoelectric effect and one is inverse or reverse piezoelectric effect. So basically piezoelectric, direct piezoelectric किसको बोलते हैं? देखो यहाँ दिखा रखा है. ये तो इलेक्ट्रोड है, फोर्स अप्लाई किया, piezo to electric. That means मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है. That is piezoelectric. When you do the other way around, इलेक्ट्रिकल इनपुट दोगे, मैकेनिकल आउटपुट देगा. दैट इज इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो तुम्हें याद दिख रहा है. बैटरी कनेक्ट करिए, बैटरी कनेक्ट करने के रिस्पांस में इनकी जो पोलैरिटी थी वो चेंज हुई है. करेक्ट? यही हो रहा है ना. दिस इज कन्वर्स लिख रखा है, इनवर्स बोल दो मतलब है उल्टा. पीजोइलेक्ट्रिक से उल्टा इफेक्ट है. ठीक है? यानी इलेक्ट्रिक पीजो है इनमें. ठीक है? सो इट इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मैकेनिकल एनर्जी. पीजोइलेक्ट्रिक में पीजो यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? चार्जेस को अलग अलग कर देना, स्प्लिट अराउंड द चार्जेस. सो ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव बना है वो इसलिए बना है क्योंकि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है. क्लियर है? इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है. चलिए ये तुम्हें समझ में आएगी. क्वार्ट्ज क्रिस्टल पैटर्न है ये जो तुम्हें क्रिप्टोनाइट जैसी चीज दिखाई दे रही है. What's happening here is generally in any quartz crystal there is a preferred z-axis. And now what the hell is this z-axis? Z-axis is the axis जिस डायरेक्शन में तुम्हारे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होंगे. ठीक है? So if you just chop off these 2 heads, you will see some these hexagonal slices. So in these hexagonal slices, the top and the bottom layer, if you compress and refract them, it generates potential difference between its top and bottom layer. Which effect is it? Piezoelectric. ठीक है? And if you provide it current, they start to vibrate. Which effect it is? Inverse piezoelectric effect. ठीक है? एग्जाम में तुम लोग उल्टा लिखाते हो, इसलिए बार-बार याद दिला रहा हूँ. ठीक है? सर So इनवर्स एक बार बता दीजिए. इनवर्स में इलेक्ट्रिक को पहले लिया. पीजो इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिकल. जब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनेगी आउटपुट में तो इट्स पीजो इलेक्ट्रिक. जब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल आउटपुट बनेगी तो इनवर्स हो गया. ठीक है? तो पीजो इलेक्ट्रिक वर्ड से ही याद रख लेना. तो आज जो लैब में तुमने किया दैट वाज इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इनवर्स यानी कि तुमने इनपुट दिया था करंट का, उससे उसने वाइब्रेशन जनरेट किए थे. फिर जब वो रिसीव कर रहा था दैट वाज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. वाइब्रेशन के रिस्पांस में वो तुम्हें करंट की आउटपुट दे रहा था जिसकी तुम पीक मेजर कर रहे थे. ठीक है? तो इसमें होता क्या है, whenever you slice of these hexagonal plates, what to find out is इनमें भी there are 2 preferred planes. One is this one x cut, one is this one y cut. These are something which are called symmetries of a plane. अब इसकी further details तुम्हारे हैं नहीं सिलेबस में होगा, but in very short what I am trying to convey to you is कि depending on in which plane you cut this thing, इसका behavior change हो जाता है. It can oscillate at 2 different frequencies based on in which plane you will be cutting it. This is very interesting thing.
मैंने तुम्हें इनिशियली बताया कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की जनरली एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, और अभी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। सवाल उठना चाहिए ना, ठीक है? फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, बात अभी भी सच है। क्यों सच है ये बताता हूँ। बिकॉज कटिंग इट इज अ फिजिकल थिंग व्हिच यू विल डू वंस एंड देन इट विल स्टे लाइक दैट ओनली। तो अब जो वो चीज बन चुकी है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, बट before cutting it you have an option of choosing between those two frequencies. In which plane you will cut it, that will decide at what frequency that particular piezoelectric crystal will oscillate. ठीक है? So these X and Y cut, if you choose one of these, its vibration frequency might be different from the other cut. ठीक है? That happens in quartz crystals. Clear है? एग्जाम में नहीं आएगा, डरो मत, बट लॉजिक बता रहा हूँ कि एक्स और वाई क्यों दिखा रखे हैं, ठीक है? तो इट इज समथिंग, अगर तुम एक क्रिस्टल को देखते हो तो क्रिस्टल में कई डायरेक्शन से अलग अलग टाइप की सिमेट्री बनती है, ठीक है? इफ anyone of you have seen things like diamonds and all those things, if you see them at certain angles, you see some kaleidoscopic kind of structures forming inside them. From other direction it might be something completely different. तो जो डिफरेंस इन सिमेट्री बनता है ना, that decides कि इसकी ऑसिलेशंस किस रेट से हो सकती हैं, and that is what decides कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी बनेगी, ठीक है? But once it has been cut, the frequency is fixed, it doesn't change, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। Again, see, formula is still same. Formula same क्यों है? क्योंकि in the end it is generation of ultrasound from compression and rarefaction. वहां पे magnetostriction हो रहा था, method of generation was different, but in the end frequency तो same ही generate होगी, ultrasound. तो formula is again the same. पक्का? Yes or no? भयंकर नींद में हो तुम लोग। अब हम आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक वाले सर्किट पे, इस चैप्टर का दूसरा सर्किट, ठीक है? अब आई बिलीव अभी इतना डरावना नहीं दिख रहा होगा जितना पिछले वाला दिख रहा था। सर ये आसान लग रहा है। आसान है? ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम ही काम है। ये रहा बेस, ये रहा तुम्हारा ट्रांजिस्टर, ये भी कॉइल। इसमें तब क्या चीज है? कॉइल्स के बीच में कुछ भी नहीं है। एक जो नई चीज जो तुम्हें इसमें ध्यान देना है वो है there is this thing called inductive coupling. एक बार इस पर ध्यान दो सब लोग, ठीक है? There is this thing called inductive coupling. Inductive coupling किसको बोलते हैं, कोई जानता है? What is inductive coupling? No one knows. मैं तुम्हारी डिग्री पर सवाल उठा लूंगा। तुम लोग सो कॉल्ड इंजीनियर्स बनना चाह रहे हो। इंडक्टिव कपलिंग क्या होती है? नाम सुना है ना? हाँ तो मुझे भी सुनाओ। हाँ Not exactly, but तुम्हें कुछ डायग्राम याद आ रहा है? That is what she's right. Inductive coupling में you are not having physical contact between two circuits, but those circuits are in contact with each other due to closeness of those coils. ट्रांसफार्मर कैसे क्या एक्ट करते हैं? इंडक्टिव। तुम सबके घर में यहाँ पे बिजली कैसे आ रही है? इंडक्टिव कपलिंग से आ रही है। बेसिकली जब तुम चाहते हो कि दो सर्किट एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करें इलेक्ट्रिकली, बट वो फिजिकली कांटेक्ट में ना हो, there are many reasons for it, surge protection and all of many things. In transformers, one of the reasons is to step up or step down. ठीक है? So when two inductors are close to each other, then they are inductively coupled. So due to Lenz's law, what happens is the change in magnetic field tries to oppose itself. That is what happens Lenz's law में। तो अगर एक इंडक्टर के अंदर तुम करंट पास करते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसी करंट को रोकने की कोशिश करता है जिससे वो बना है। It tries to oppose its own source, और वो जब बनता है तो इंडक्टिव कपलिंग की वजह से दूसरी कॉइल में भी बनता है।
at the same time, and due to this जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर L2 के अंदर जाएगा वो उस कॉइल के अंदर करंट जनरेट करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? मान लो इन दोनों कॉइल्स में करंट यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है ऐसे, ठीक है? इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वजह से L2 कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है? बट हम तो कैसा करंट ले रहे हैं? हम करंट किस टाइप का ले रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट यहां अल्टरनेटिंग बनेगा कैसे? ड्यू टू दिस थिंग, ड्यू टू क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो वाइब्रेशंस हो रही होगी उन वाइब्रेशंस के रिस्पांस में जो करंट पास ऑन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पलटता रहेगा, एक बार इधर प्लस दूसरी बार इधर प्लस, तो जो ये पलटेगा वही चीज यहाँ भी कॉपी होगी। सो दिस इज हाउ दिस थिंग कैन रन दिस थिंग एज वेल एज दिस थिंग कैन रन दिस थिंग, वाइस वर्सा। पीजोइलेक्ट्रिक एंड रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक दोनों चीजें यहाँ वर्क कर सकती हैं। मेरे को पक्का लग रहा है, समझ में आया कि आई कैन गारंटी पूरी क्लास में से एक या दो बच्चे को समझ में आया। मैं प्रूव कर सकता हूं अभी के अभी, इसलिए कह रहा हूं पूछ लो मेरे से डाउट। पहले वाले में केवल एक ही चीज होती है। अर्जेंट अभी जाना है, मेरी मीटिंग है सर, कोऑर्डिनेटर मीटिंग बुला ली क्या? हाँ सर, मीडिया की है सर, एप्लीकेशन दे मेरे को भी आनी है। इसमें सर एचओडी का मेरा नाम लिखा है सब डिटेल, रोल नंबर 18 है सर। मैसेज ड्रॉप कर देना, थैंक यू सर। ठीक है? मेरे को कंफर्म बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। नहीं तुम बोलो ना, 10 मिनट में हम लोग मुंह खोलने में लगाए थे यार, ठीक है? सर डिफरेंस नहीं समझा उसमें। उसमें और इसमें ना, हाँ ठीक है, हम डायग्राम से ही पकड़ते डिफरेंस। देखो काफी पीछे था क्या? हाँ तो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो इंडक्टिव कपलिंग, डायरेक्ट इंडक्टर्स के अंदर रॉड है, हाँ वो रॉड कंप्रेस से एक्सपेंड हो रही है इन रिस्पांस टू जो इसने एम्पलीफाई किया और जो इसने लूप चलाई एलसी सर्किट में। इसने ऑसिलेशन जनरेट करी, इसने ऑसिलेशंस को एम्पलीफाई किया ताकि वो ऑसिलेशंस में इतनी एनर्जी हो कि इस रॉड को एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट कर सके। दिस इज दिस केस। अब हम उसमें जाते हैं। उसमें इंडक्टिव का बहुत लंबी बात है, खत्म ही नहीं हो रही है, बस करो, इतनी लंबी बात है, ठीक है? अब इस वाले केस में आके देखते हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ज्यादा चलो। नीचे वाला सर्किट इज ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। सी LC दिस थिंग ऑलमोस्ट द सेम। ओनली डिफरेंस इज जो यहाँ पे रॉड थी, उस रॉड की जगह तुमने कपलिंग में एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को लगाया है। अब वहां पे रॉड क्या थी? रॉड वाज गिविंग यू आउटपुट ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट उसको एज इनपुट मिल रहा था, उसका मैकेनिकल आउटपुट जनरेट कर रही थी रॉड, करेक्ट? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनपुट ये है, मैकेनिकल आउटपुट ये देगा, बट इसको तुम यहाँ डायरेक्टली लगा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को अपने दोनों बाउंड्रीज जो फेसेस हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है इन ऑर्डर फॉर इट टू जनरेट वाइब्रेशंस। तो उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको किसी तरह से इलेक्ट्रिकली इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में लगाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं लगाया? इसके पीछे रीजन है। Whenever you do inductive coupling of any circuit, you are safeguarding that circuit from power of this circuit. अगर इस सर्किट में जो तुमने बैटरी लगाई है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इसको खराब कर सकती है, तो तुमने रास्ते में इंडक्टिव कपलिंग करके उसको सेव कर दिया है। That is what you are doing here. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में there was no issue, वो बहुत हाई पावर संभाल सकता है, तो तुमने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दी थी, सेम सर्किट में था वो। यहाँ पे this is something which is saving your piezoelectric crystal from extreme high power which can be generated from this battery. तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी ऑसिलेशंस की इंफॉर्मेशन उस सर्किट तक पहुंचा रहे हो, बट
पावर को कंट्रोल करके, क्योंकि वो बेचारा छोटा सा क्रिस्टल है यार क्वार्ट्ज का, वो कैसे संभालेगा तुम लोगों ने 10-12 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो, करेक्ट? So that is what this whole thing is called, inductive coupling. क्लियर हुआ? और कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें, बाकी सब सेम है। ओ चलो, क्या हमें पीछे से आना पड़ेगा? हाँ ओके, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं फटाफट। पहली बात तो हाई फ्रीक्वेंसी सिर्फ अप टू 500 मेगाहर्ट्ज, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जा सकता है, 1 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक, तो दैट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड, मैंने बताया क्रिस्टल एक पर्टिकुलर प्लेन में अगर काटा होगा तो वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ही जनरेट करेगा, क्योंकि उसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और किसी फ्रीक्वेंसी पे चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में दैट रेजोनेंस थिंग इज एक्सट्रीम, मैंने बोला था ना माइकल जैक्सन वाली चीज, और किसी फ्रीक्वेंसी पे नाच ही नहीं सकता, उसी फ्रीक्वेंसी पे नाचेगा, एक सिंगल सॉन्ग। सो दिस इज व्हाट दैट इज, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी कवर्ड यूजिंग डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स। ये बेसिकली जो भी तुम्हें सर्किट दिखाया है ये वही बोल रहा है कि जो अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करना चाहते हो तुम्हें इनडायरेक्टली करने पड़ेंगे, डायरेक्टली वो आउटपुट जो है वो फिक्स ही देगा। तो अलग अलग ट्रांसड्यूसर लगा के यू कैन generate like half multiple, 1/4 multiple of that frequency. That is what happens in your watches. तुम्हारे वॉच में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है that generally oscillates at somewhere around 1.6 मेगाहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। तो 1.6 मेगाहर्ट्ज से तुम 1 सेकंड पे कैसे आओगे? You need lots of such circuits which divide that frequency repeatedly. तुम उसको इतनी बार डिवाइड करते हो कि वो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड की बन जाती है, यानी कि 1 हर्ट्ज की बन जाती है। तो दैट इज व्हाट ऑल ऑफ दीस सर्किट्स डू इनसाइड योर वॉचेस, दे डिवाइड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल व्हिच इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ऑफ यूज टू यू, ठीक है? पक्का क्लियर? चलो एप्लीकेशंस। सोनार क्या होता है? सोनार sound navigation and sensing, यानी sound के through you are navigating and you are also trying to find out range of certain things. सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? ships, submarines and all those things, ठीक है। तो जो समंदर में जो मच्छियों की बात करें that is also sonar basically, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? ये तुम्हारी बेसिक जो तुमने 10th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी थी वो वाली चीज है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ अलग क्या है? डिवाइड बाय 2, क्यों? आना जाना, टू एंड फ्रो। तुम जहां से सोर्स से जहां से तुम साउंड जनरेट कर रहे हो वो टकरा के वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस इज बेसिकली 2 टाइम्स। तो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तुम्हें एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना पता चलेगा, ठीक है। आगे चलें। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू गाइस नो ऑलरेडी, इट इज यूज्ड टू गाइड सबमरीन्स इन द सी एनिमल्स यूज डॉल्फिन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब आते हैं काम की चीज पे जिसके ऊपर मेरी पीएचडी है, ठीक है। डोंट वरी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे मेरी पीएचडी हो, टॉपिक छोटा ही है। सो देयर इज दिस थिंग व्हिच इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नाम क्या सजेस्ट करता है? बताओ मेरे को, तीनों टुकड़ों का मतलब। डिस्ट्रक्शन ना हो इसकी टेस्टिंग, ठीक है। सो दिस सेंटेंस व्हाट इट सेज इज, इट सेज ये आर्कियोलॉजिस्ट के खिलाफ है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो चीजों की खुदाई करके तोड़ के पता लगाते, अच्छा ये तो ये थी, ये बोलता मैं बिना तोड़े बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज एक्जेक्टली व्हाट इट डज। अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी टाइप का फॉल्ट है, ठीक है। मान लो ये बिल्डिंग तुमने खड़ी करी किसी ने, ठीक है, उस बिल्डिंग में बीम्स लगाई हैं, रॉड्स लगाई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वो सब चीजें अगर आइडियली बनी हुई है तो इट विल स्टे स्टिफ स्ट्रॉन्ग, बट आइडियल कभी कुछ होता ही नहीं। प्लस वी आर इन इंडिया, घपला वैसे भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो जहां भी जानबूझ के या फिर अनजाने में कोई घपला होगा वहां पे क्या है, कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा। तो किसी मटेरियल में अगर कोई डिफेक्ट आया और तुम तोड़ के पता लगाते हो डिफेक्ट का, तो क्या फायदा हो डिफेक्ट का पता लगाना? मटेरियल तो तोड़ ही दी तुमने, है ना। तुम तोड़ के बोला सर इसमें कमी थी, मतलब तो बचा ही नहीं, कमी किसमें है, ठीक है। तो कमी का पता लगाना
को तोड़े, उसके लिए we use non-destructive texting technique, which is nothing but similar to जैसे अल्ट्रासाउंड है. तुम एक ट्रांसड्यूसर यूज करते हो, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर. मोस्टली ये क्वार्ट्ज का ही होता है, नहीं सॉरी, मोस्टली पीजेटी होता है. पीजेटी क्या था? लेड जिंक्रोनेट टाइटनेट. लेड जिंक्रोनेट, ठीक है, जिंक्रोनेट, सॉरी मैं भी भूल गया. लेड जिंक्रोनेट टाइटनेट, ठीक है, ZIRCO, जिंक्रोनेट. हाँ, अच्छा, ठीक है. तो मोस्टली पीजेटी के ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं. व्हाट दे डू इज दे जनरेट अल्ट्रासाउंड. Ultrasound at times is reflected from the other end. At times, if there is a defect, it will be reflected from the defect. और जहां से रिफ्लेक्ट होगी डिफेक्ट की, वहां पे तुम्हें ऐसे पल्स दिखाई देगी. देखो, ये पल्स किस चीज की है? This pulse is basically calculating voltages with units of time. यानी कि अगर कोई वोल्टेज की पल्स टाइम में जल्दी आ गई, यानी कि कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, तो ये पल्स जल्दी आ गई. ये पल्स जो कि बाद में आनी थी, अगर तुमको पता है एक सैंपल की लेंथ लेटस से कुछ 3 मीटर्स है, और तुम्हें पता है उस मटेरियल में साउंड किस स्पीड से ट्रेवल करती है, you guys can know exactly in these many nanoseconds the sound will reach back to us, correct? आज वाले एक्सपेरिमेंट की तरह. तो अगर उतनी नैनोसेकंड से पहले कोई पल्स अगर वापस आ रही है, that means something is in the path which is not supposed to be there. वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है. तो ये पल्स ने हमें क्या बता दिया कि इस मटेरियल में there is a flaw at that much depth. इतनी डेप्थ पे फ्लॉ है, ये भी पता चल गया. तो अगर किसी को करेक्शन करना होगा, वो सब कुछ नहीं तोड़ेगा, वो यहाँ साइड से ड्रिलिंग करेगा, फ्लॉ को ठीक कर देगा और बंद कर देगा ड्रिलिंग. ठीक है. Hence the name non-destructive testing. इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा जगह पे होती है. तुम लोग जिस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, उस फ्लाइट की जो डेली चेकिंग होती है, इसी मेथड से होती है. रोज वो उसकी विंग्स को तोड़ के रख करते हो, देखेंगे नहीं अंदर क्रैक है कि नहीं है. ठीक है. सबमरीन्स हैं, उनकी चेकिंग कैसे करोगे? क्रेन से उसको बाहर निकाल दो, देखोगे नहीं नीचे से हाँ साफ है. These are the things which are used. इसका फायदा क्या है? तुम पूरे स्ट्रक्चर पे किसी एक कोने पे इसको लगा दो, पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू साउंड ट्रेवल करती है. इट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द होल स्ट्रक्चर. ऐसा सीधा होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे लाइन में दिखा रखा है. एक मेटल है, वो मेटल का सांप बना रखा है तुमने, उसे एक कोने पे लगा दो, पूरे सांप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड. इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. ठीक है. So clearly, I think this must be the only thing जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी. इसमें तुम थोड़े जागे हो. ठीक है. So ये सब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया. It is displayed on a CRO. जो ग्राफ दिख रहा था उसको जरूरी CRO पे बनाते हैं. ठीक है. इसके एडवांटेज एक फटाफट. फास्ट एंड रिलायबल, साउंड बहुत तेज चलती है, हमसे तेज ही है. ठीक है. इजी टू ऑपरेट, सुटेबल फॉर ऑटोमेशन. तुम डिवाइस लगा के छोड़ सकते हो. यू कैन जस्ट रिमोटली रन द डिवाइस एंड इट विल गिव यू आउटपुट. ठीक है. डेटा लॉगर पे इंटरनेट से तुम डेटा पिक कर सकते हो. दैट इज सो मच इजी टू डू. ठीक है. इस बिल्डिंग की मान लो, या फिर किसी जनरली क्या होता है, ब्रिजेस जो होते हैं ना, ब्रिजेस के ऊपर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स फिट करके छोड़ देते हैं और उनको कनेक्ट कर दिया जाता है आर्डिनो से. वो आर्डिनो में एक GSM वाली किट लगा देते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो क्या होता है, इंटरनेट पे ही कहीं दूर बैठा कोई इंजीनियर वीकली उसकी चेकिंग कर सकता है कि ब्रिज की हेल्थ ठीक है कि नहीं. डेली गाड़ियां चलती हैं, विद टाइम फटीग की वजह से ब्रिज में क्रैक्स फॉर्म हो सकते हैं. तो वंस इन ए वीक वो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को ऑन करेंगे रिमोटली, देखेंगे डेटा सेट पिछले वीक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर कोई नया क्रैक फॉर्म हुआ होगा, डेटा सेट बदलेगा, दे कैन रिमोटली टेल कि अभी यहाँ पे इसकी चेकिंग करने की जरूरत है, ट्रैफिक को रुकवा दो. ठीक है. ये सब एप्लीकेशन जहाँ पे ये सब चीजें यूज हो सकती है. ठीक है. पोर्टेबल इक्विपमेंट, नो स्पेशल सेफ्टी रिक्वायर्ड, हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई सेंसिटिविटी, हाई एक्यूरेसी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है. लिमिटेशंस देख लेते क्या है. It is not suitable for objects that are rough and irregular in shape.
तुम्हारी भी अल्ट्रासाउंड करता है डॉक्टर, तो पहले वो जेल लगाता है, उसके बाद में करता है। दैट मीन्स एक स्मूथ सरफेस का कांटेक्ट जरूरी है, बिकॉज जो तुम कांटेक्ट बना रहे हो मैकेनिकल कांटेक्ट है। मैकेनिकल कांटेक्ट के लिए अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया मैटर्स। तो अगर बहुत कम सरफेस एरिया होगा कांटेक्ट का तो मैकेनिकली चीज ट्रांसफर नहीं होती। दैट इज व्हाई स्पीकर्स की आउटपुट डिपेंड करती है स्पीकर्स के साइज पे। स्पीकर का साइज सरफेस एरिया डिसाइड करता है कितनी साउंड आउटपुट जा सकती है। दैट इज सेम थिंग, ठीक है। Say one of the special cases, line shape defects lying parallel to the ultrasonic beam may skip the detection. Very specific case scenario. अगर एक नीडल टाइप का ऐसा डिफेक्ट होगा तो इट इज पॉसिबल कि उसमें से रिफ्लेक्शन आ ही ना पाए, बट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक केस सिनेरियो। उसका इलाज क्या है? तुम सिर्फ ऊपर से नहीं, तुम साइड से भी टेस्टिंग कर लो, पकड़ में आ जाएगा। ऊपर से बन गया तो क्या हुआ, साइड से दिख जाएगा, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जिनको दिमाग, अगर तुम्हें पता होगा क्या क्या लिमिटेशन है, यू कैन वर्क अराउंड दोस थिंग्स, ठीक है। रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, ये तुम्हें चाहिए अभी, सब बहुत जोर से चाहिए टेक्निकल नॉलेज तुम्हें अभी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है।